फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन के लिए हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म होगा अब। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन जो अब हम करने वाले हैं वो इसका सबसे, इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। उसके लिए इतनी बेस बनानी जरूरी थी। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग नहीं पता, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता, प्रॉपर्टीज के रीजंस नहीं पता, अगर आपको बजट लाइन का मीनिंग नहीं पता, इक्वेशन नहीं पता, प्रॉपर्टीज नहीं पता, उनके रीजन नहीं पता, तो ये अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि वो चीजें हम अच्छे से कर चुके हैं तो ये करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जितनी बातें हम सुन चुके हैं बस वो अब अप्लाई होंगी। ध्यान से देखना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो कोई भी इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं तो उससे पहले उसकी अजम्पशंस होंगी। यूटिलिटी एनालिसिस की अपनी अजम्पशंस थी, इंडिफरेंस कर्व की अपनी अजम्पशंस है। नंबर वन, there must be two commodities. Utility analysis one commodity case भी होता है, two commodity भी होता है. Indifference curve only two commodities. It is assumed that the consumer has a fixed amount of money, income fixed है, whole of which is to be spent on two goods. दो ही goods हैं, prices उनके constant हैं, income आपकी constant है. Non-satiety. It is assumed that the consumer has not reached the point of satisfaction. He is in search of the point where he will attain maximum satisfaction. तो मतलब consumer always prefer at least more of one commodity. Monotonic है उसकी preferences. कि अगर आप 8 पे हो, 8 यूनिट्स ऑफ x, 8 यूनिट्स ऑफ y, और मैं आपको ऑप्शन दे दूं 9-8 लोगे क्या, आप कहोगे यस सर प्लीज। तो आप हमेशा वो चीज प्रेफर करना चाहोगे in which you will get more of one and no less of the other. He always tries to move to a higher indifference curve, but within his budget. So a consumer will always try to move to a higher indifference curve. तो हमें पता होना चाहिए कि higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. That is the reason why he wants to move on a higher indifference curve. Ordinal utility. Utility analysis जो हमने पहले करा था उसमें था cardinal utility, cardinal approach. Utility was measurable. Indifference curve analysis कहता है ordinal, मतलब consumer can rank his preferences. ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस, ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस, बट यू कैन नॉट मेजर यूटिलिटी. तो कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच बंडल ऑफ द. नेक्स्ट, diminishing marginal rate of substitution, diminishing MRS. तो it is assumed that MRS diminishes. Diminishing MRS की वजह से ही तो कॉन्वेक्स स्लोप आई थी, कॉन्वेक्स शेप आई थी इंडिफरेंस कर्व की. तो अगर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो उसका रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS. डिमिनिशिंग MRS ensures convexity and it will ensure unique equilibrium. Indifference curve analysis assumes diminishing marginal rate of substitution. Due to this assumption, an indifference curve is convex to the origin. और most important point, consumer हमारा rational होना चाहिए. The consumer is assumed to behave in a rational manner. He aims to maximize his total satisfaction. तो equilibrium पढ़ने से पहले assumptions. Two commodities, non-satiety, monotonic preferences. You will always prefer that bundle in which you get more satisfaction. Higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. Ordinal utility, utility cannot be measured, preferences can be ranked.
Diminishing marginal rate of substitution gives convex shape to the indifference curve and rational consumer. Okay, तो पहले हमने अंडरस्टैंड करी assumptions of indifference curve analysis. Now the actual equilibrium. जब भी equilibrium पे क्वेश्चन आए तो पहले आप assumptions ही देंगे, फिर equilibrium explain करेंगे. Consumer equilibrium refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given prices and his income. Subject to given prices and income matlab prices will remain constant, income is given and it remains fixed. Uske given scenario mein a consumer wants to maximize his satisfaction with no intention to change. तो ये क्या हो गया? Meaning of consumers equilibrium. तो जब भी आप equilibrium explain करेंगे, एक ऑर्डर दे देता हूं आपको. सबसे पहले आ गया आपका मीनिंग, फिर आती हैं assumptions, फिर आती है conditions, फिर उसकी explanation और ग्राफ, conditions, फिर ग्राफ एंड explanation. 6 मार्कर के लिए ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है. सबसे पहले मीनिंग, फिर assumptions, फिर conditions, फिर ग्राफ एंड explanation. मीनिंग कर लिया, assumptions कर ली. अब ध्यान से देखना. The point of maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line together. तो इसीलिए बहुत जरूरी था indifference curve, indifference map, budget line के concepts understand करना. On an indifference map, family of indifference curves, multiple indifference curves put together are considered as an indifference map. On an indifference map, higher indifference curve represents higher level of satisfaction than any lower indifference curve. So a consumer always tries to remain at the highest possible indifference curve, subject to his budget constraint. कह रहा है higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. So a rational consumer will always try to maximize his satisfaction subject to his budget constraint. Budget constraint क्या है? You cannot spend more than your income. Conditions क्या है consumers equilibrium की? 2 conditions हैं. Number 1, most important, MRS should be equal to the price ratio. MRS क्या है? The slope of indifference curve. MRS क्या है? The slope of indifference curve. MRE price ratio क्या है? Slope of budget line. कह रहे जहां पे दोनों की slope equal है वो point of equilibrium होगा. Condition number 1. क्या था slope of indifference curve? Slope of indifference curve था MRS, the rate at which you are willing to sacrifice units of good Y or good 2 for an additional unit of good X. Your willingness, कितनी units आप sacrifice करना चाहते हो. Slope of indifference curve. Slope of budget line, ये अपना price ratio. Price ratio क्या था? Price ratio था the number of units of good 2 which you have to sacrifice depending on the prices for an additional unit of good X. MRS बताता था कितनी यूनिट्स आप सैक्रिफाइस करना चाहते हो डिपेंडिंग ऑन द सैटिस्फैक्शन विच यू आर गेटिंग. प्राइस रेशियो बताता है कितनी यूनिट्स आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. MRS डिमिनिशिंग होता है. अगर आपके पास किसी चीज की यूनिट्स कम है तो योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस द अदर कमोडिटी हाई होगी. अगर किसी चीज की यूनिट ज्यादा है तो विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस द अदर कमोडिटी कम होगी. तो डिमिनिशिंग MRS होता है एज यू कंज्यूम मोर ऑफ वन. बट प्राइस रेशियो वो तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि प्राइसेस चेंज नहीं होते. तो जहां पे स्लोप, जहां पे आपकी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस गुड 2 फॉर गुड X इक्वल हो जाएगी किससे? जो मार्केट चाहती है रेट के हिसाब से जितना आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यू विल अटेन इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, MRS should continuously fall. Diminishing MRS होना assumption भी थी, condition भी है. अगर ये नहीं है तो आप indifference curve equilibrium point identify नहीं कर सकते.
MRS continuously falls. The second condition for the consumer's equilibrium is that MRS must be diminishing at the point of equilibrium. क्या होता है उससे? Because of diminishing MRS, it gives convex shape to the indifference curve. The indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium. दो condition, slope of indifference curve, that is MRS, should be equal to the price ratio, slope of budget line. So हम लिखेंगे MRS should be equal to the ratio of prices Px upon Py. Second condition, MRS continuously falls. At the point of equilibrium, MRS should be diminishing. It gives convex shape to the indifference curve. It ensures unique equilibrium. It ensures unique equilibrium. अब ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आए तो आपको उसका डिसइक्विलिब्रियम भी समझ आना चाहिए कि अच्छा जब वो इक्वल नहीं होंगे तो क्या मतलब, ऐसा क्यों कि मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं होगी. ध्यान से देखना, आप ही मुझे इस चीज का आंसर देंगे, सुनने पे ध्यान देंगे. एक सेकंड, मैं एग्जांपल क्रिएट करता हूं, ध्यान से देखना. सुहानी, आवाज आ रही है? Yes, sir. MRS XY is equal to the ratio of prices. आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है? आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है? Sir, it means that P price of good X upon price of good Y is equal to MRS. नहीं, ठीक है, वो तो हो गई इक्वेशन. MRS बताता है योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस गुड Y फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X. एक यूनिट X के लिए आप कितने यूनिट्स ऑफ Y सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो. MRS XY ये बताता है. यस और नो? Yes. और प्राइस रेशियो क्या बताता है? एक यूनिट X के लिए आपको Y की कितनी यूनिट्स सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी. कि अगर गुड X 5 रुपए का है, गुड X 10 रुपए का है, और गुड X कितने का है? 10 रुपए का. गुड Y अगर 5 रुपए का है तो कितने कितनी यूनिट्स ऑफ गुड Y आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी गुड X के लिए? अगर Sir, एक बार repeat करना. अगर प्राइस ऑफ X 10 है और प्राइस ऑफ Y 5 है, गुड Y 5 रुपए का है और गुड X 10 रुपए का है, एक X लेना चाहते हो, एक यूनिट ऑफ X, तो Y की कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी? Sir, 2. 2 यूनिट्स. ठीक है. अब प्राइस रेशियो क्या चेंज होता है? अजम्पशन है प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, तो प्राइस रेशियो चेंज नहीं होगा. ये बात क्लियर है? Yes, sir. ओके. MRS की क्या अजम्पशन है? डिमिनिशिंग MRS है कि MRS गिरता जाएगा. Yes, sir. ओके. जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब होता है जितनी यूनिट्स आप सैक्रिफाइस करना चाहते हो मार्केट प्राइस के हिसाब से, उतनी ही यूनिट सैक्रिफाइस करनी है Y की X के लिए. तो ये हो गया इक्विलिब्रियम. अब ध्यान से देखना, व्हाट हैपेंस इफ MRS XY इज ग्रेटर देन द प्राइस रेशियो. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा X की एक यूनिट के लिए आप 5 यूनिट देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके पास X की शॉर्टेज है. बट मार्केट क्या चाहती है? सिर्फ 2 ही यूनिट्स चाहिए. यस और नो? Yes, sir. आप ज्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो. ऐसा क्यों? ऐसा कब हो सकता है कि आप ज्यादा देने के लिए तैयार हो? क्या 2 छोड़, मेरे को 5 ले ले, मुझे बस वो दे दे. ऐसा कब हो सकता है? जब वो commodity scarce. वेरी गुड, स्कैरसिटी. अगर मेरे पास X कम है तो मैं Y की ज्यादा यूनिट्स देने के लिए भी तैयार होऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा गुड X Y सैक्रिफाइस करके. यस और नो? Yes. तो कब तक मैं Y देने के लिए तैयार होऊंगा ज्यादा यूनिट्स एज कंपेयर टू द मार्केट? जब तक वो मुझे X की शॉर्टेज है, X मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है,
तब तक मैं अपनी कंजम्पशन बढ़ाता रहूंगा गुड एक्स की, यस और नो? Yes, sir. एज आई कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स, तो जो मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन है फ्रॉम एक्स बढ़ेगी या कम होगी? So बढ़ेगी। एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम गुड एक्स नहीं बढ़ेगी या सर, कम कम होगी? होगी। कम होगी, लॉ ऑफ डीएमयू। तो अगर मेरी एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम गुड एक्स कम हो रही है तो मेरी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस गुड वाई बढ़ेगी या कम होगी? तो कम होगी। गुड। मेरी एम तो मेरी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस गुड वाई फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स वो कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। एक्स मुझे अब उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, बट क्या प्राइस रेशियो चेंज होगा? नहीं सर। प्राइसेस कांस्टेंट है, प्राइसेस चेंज नहीं होते। तो इफ एमआरएस एक्स वाई इज ग्रेटर देन द प्राइस रेशियो, इसका मतलब द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स, क्योंकि वो तो शॉर्टेज है, उसकी स्कैर्सिटी है। एज ही कंज्यूम्स मोर ऑफ गुड एक्स, एमआरएस एक्स वाई स्टार्ट्स फॉलिंग, डिमिनिशिंग एमआरएस है। ही विल कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स till he reaches the point where MRS XY is equal to price ratio. तो पहली कंडीशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। If MRS XY is greater than the price ratio, it means that to obtain one more unit of X, the consumer is willing, keyword है willing, to sacrifice more units of Y as compared to what is required in the market. What is required in the market? It depends on the price ratio. योर विलिंगनेस डिपेंड्स ऑन योर कंजम्पशन लेवल्स, कि आपके पास कितनी यूनिट्स हैं उस चीज की। तो इनिशियली जब आपके पास एक्स की शॉर्टेज है, स्कैर्सिटी है, योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस गुड वाई फॉर गुड एक्स विल बी, it induces the consumer to buy more of good X. As a result, MRS falls and continues to fall till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established. So if MRS XY is greater than the price ratio, the consumer will increase the consumption of good X. बुरी कहानी समझ आ गई? He will continue to consume more of good X till the point MRS becomes equal to price ratio. अब now what happens if MRS is less than the price ratio? इसका मतलब क्या होता है? Your willingness to sacrifice units of good Y for an additional unit of good X is less. Less than what? Less than what the market requires. आपके पास X अब बहुत ज्यादा हो गया है, वो कह रहे हैं कि आप 5 दे रहे थे यूनिट्स Y की X के लिए, फिर 4 पे आए, अब कह रहे हो X के लिए मैं 1 यूनिट दूंगा, देना है दो, नहीं देना मत दो, मेरे पास बहुत X हो गया। मार्केट के हिसाब से तो आपको Y की 2 यूनिट सैक्रिफाइस करनी है। तो इफ योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस units of good Y is less than what the market wants you to sacrifice, तो क्या आपको वो कमोडिटी मिलेगी अव्या? नहीं सर। मिलेगी ही नहीं। तो you will have to reduce your consumption. अब MRS XY is less than PX upon PY, it means that it means to obtain one more unit of good X, the consumer is willing to sacrifice less units of good Y as compared to what is required in the market. It induces the consumer to buy less of good X. अब X उसको उतनी satisfaction दे ही नहीं रहा, so he will reduce the consumption of good X and more of good Y. As a result, MRS rises. अब आप उल्टा चल रहे हो. As you consume more of good X, MRS diminishes for X. As you consume less of good X, MRS rises. उल्टा चलेगा ना? Till it becomes equal to the ratio of prices and the equilibrium is established. Thus, both the conditions need to be fulfilled for a consumer to be in equilibrium. ध्यान से देखना अब इसका ग्राफ, मजा आएगा। If MRS XY is less than the price ratio, the consumer will
reduce the consumption of good X and increase the consumption of good Y. बेटा इतना इससे ज्यादा डिटेल्ड बिल्डअप इक्विलिब्रियम के लिए पॉसिबल नहीं था, तो प्लीज मजा तब आएगा जब आप भी अच्छे से रिवाइज करें। अभी तो बस मैं आपको डिमिनिशिंग एमआरएस बता रहा हूँ, फिर मैं पूरा इक्विलिब्रियम बताऊंगा। ध्यान से देखना, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बस बताना चाहता हूँ, फिर मैं इक्विलिब्रियम के ग्राफ पे आऊंगा। ध्यान से देखना। अगर ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, यहाँ पे है गुड वाई, यहाँ पे है गुड एक्स। आप बताओ मुझे, कौन बताएगा? द्विज, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, जब आप इस पॉइंट पे हो, पॉइंट ए पे, तो आप एक्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो या वाई? सर एक्स। ठीक है, ध्यान से देखना, जब आप पॉइंट ए पे हो नहीं तो सर, सॉरी वाई, वाई, सॉरी सर, वाई। प्लीज टेक योर टाइम ना, मतलब ऐसे जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं है। इतने एक्स की कंज्यूम कर रहे हो, ये है ना एक्स की, तो यस सर। और ये इतना वाई, तो एक्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो या वाई? सर वाई। ठीक है ना। अब अगर आप पॉइंट बी पे गए, अभी ए पॉइंट पे, योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस गुड वाई फॉर गुड एक्स, पॉइंट ए पे हाई होगी या लो होगी? योर विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस गुड वाई, यूनिट्स ऑफ गुड वाई फॉर गुड एक्स, हाई होगी या लो होगी एट पॉइंट ए? द्विज? सर हाई। वेरी हाई, क्योंकि आपके पास x कम है, y बहुत ज्यादा है। यस सर। तो अब आप a से b पे आ गए। अब b पे ध्यान से देखना, b पे एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन, अब आप x ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो या कम? सर ज्यादा। पहले से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। यस सर। तो अब आपकी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस गुड y फॉर गुड x बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। कम होगी। गुड, क्यों? सर क्योंकि अब हम गुड एक्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं पहले से, और गुड बाय कम। पहले से ज्यादा x, तो एज वी कंज्यूम मोर ऑफ गुड x, द सेटिस्फैक्शन, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम गुड x गिरती जाएगी। यस सर। देयरफॉर मेरी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस यूनिट्स ऑफ गुड y गिरती जाएगी। यस सर। अब अगर मैं इस पॉइंट पे हूं C, तो मैं x बहुत ज्यादा x कंज्यूम कर रहा हूं यस सर। और y बहुत कम कंज्यूम कर रहा हूं। यस और नो? यस सर। तो मैं x की कंजम्पशन बढ़ाना चाहूंगा या y की? सर वाई की। तो y की मतलब मैं उल्टा जाना चाहूंगा ना। यस सर। तो उल्टा जाऊंगा तो MRS बढ़ेगा या कम होगा? जब मैं उल्टा जाऊंगा, जब मैं A से B पे आया MRS बढ़ेगा। डिमिनिशिंग था, B से C पे आया MRS डिमिनिशिंग था, तो जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो सर तो MRS बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये पॉइंट समझना जरूरी है कि इनिशियली क्योंकि गुड एक्स बहुत कम है तो MRS बहुत हाई होता है, एज वी गो डाउन द इंडिफरेंस कर्व MRS डिमिनिशेस, MRS डिमिनिशेस। ओके, अब आएगा असली मजा। प्लीज ध्यान से देखना बेटा, इतनी सारी बातें आपको बता दी है ना, समझ आना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी 1% भी अगर हो तो प्लीज पूछना। आराम से देखना, पहले मैं आपको पूरा ग्राफ बना के दिखाता हूं। क्या कर रहे हैं हम? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। बहुत 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 अच्छा बिल्डअप क्रिएट करा आपने, काफी सारे कॉन्सेप्ट सुने यहाँ पे पहुंचने के लिए।
तो ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। गुड 1, गुड 2। ओके, तो हम बनाते हैं पहले इंडिफरेंस कर्व्स। ध्यान से देख। ठीक है, वो मेहनत है इसमें, कंप्यूटर बनाने में तो एक अलग ही मेहनत है। ध्यान से देखना। ओके, ओके, लास्ट ट्राई। ध्यान से देखो, मजा आएगा। ग्राफ बहुत प्यारा है इसका, उसके लिए मैं इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। माइक्रो का फेवरेट ग्राफ है मेरा। आप क्या पेंसिल से बनाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा मतलब काफी। मजेदार। ध्यान से देखना। IC1, IC2, IC3। Higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. Yes or no? Yes, sir. Okay. अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुझे इसको पेंटिंग करते हैं, अभी पता चल जाएगा कि क्यों कर रहा हूं। ओके, अब हम बनाते हैं बजट लाइन। ध्यान से देखना। ओके, तो हमने बनाए इंडिफरेंस कर्व्स IC1, IC2, IC3। फिर एक बनाई स्ट्रेट लाइन, बजट लाइन। स्ट्रेट बजट लाइन कांस्टेंट स्लोप होती है तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। कांस्टेंट स्लोप क्यों होती है बजट लाइन की? भव्या, सर एक बार रिपीट कर दो। बजट लाइन की कांस्टेंट स्लोप, व्हाई इज बजट लाइन अ स्ट्रेट लाइन? Sir, because its slope is MRS price ratio, which remains constant. बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्राइस रेशियो। ठीक है ना, करेक्ट। व्हाई इज इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? So because IC curve's slope is MRS and it changes. गुड, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है। कैन यू स्पेंड मोर देन योर इनकम? No, sir. यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन योर इनकम। तो अब ध्यान से देखना, आप ये पॉइंट भी अफोर्ड कर सकते हो सी, ये पॉइंट भी अफोर्ड कर सकते हो डी, और ये पॉइंट भी अफोर्ड कर सकते हो ई। जब आप सी पे हो तो भी आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो। Yes, sir. जब आप डी पे हो तो भी आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो। Yes, sir. और जब आप ई पे हो तो भी आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो। यस और नो? Yes, sir. तो मतलब तीनों आपके बजट में तो आते हैं। आप क्या पॉइंट चूज करोगे, सी, डी या ई? या फिर आपके लिए तीनों इक्वली सेटिस्फाइंग है? अमिताशा, आपके हिसाब से? Sir, तीनों equally satisfying है. ओके, गुड। भव्या? सी, Sir, E. डी या ई? आप कहते हो ई।
तीनों इक्वली सेटिस्फाइंग नहीं है आपके हिसाब से? Yes. Why will you prefer E over C and D? बोलो भव्या। सर एक सेकेंड, आपकी वॉइस क्रैक। Why will you prefer E over C and D? Sir, because it is on a higher IC curve. गुड, परफेक्ट आंसर। बेटा अमिताशा, सी और डी आपके बजट में तो हैं, बट वो IC1 पे लाई करते हैं। पॉइंट ई भी आपके बजट में है, उतना ही पैसे स्पेंड कर रहे हो, एंड वो IC2 पे लाई करता है। पर्पस क्या है? टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। तो E lies on a higher indifference curve and it very much lies within your budget. तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हुआ? पॉइंट ई। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हुआ? पॉइंट ई। अब इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है और जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, वो एग्जैक्टली सेम है। इस पॉइंट पे द इंडिफरेंस कर्व इज tangent, indifference curve is tangent to the budget line. इधर इनिशियली इसकी ऐसी स्लोप थी इंडिफरेंस कर्व की, यस और नो? स्टीप थी ना काफी? यस सर। और नीचे जाएंगे तो ऐसी है, काफी ज्यादा लो हो चुका है MRS। यस सर। बट जब बीच में है तो एग्जैक्टली सेम एज बजट लाइन है कि नहीं है? यस सर। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन नंबर 1 वो इस पॉइंट पे ही पॉसिबल है। और क्या हो रहा है? व्हाई इज दिस कंसिडर्ड एज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट? यहां सेटिस्फैक्शन आपकी मैक्सिमम है, और कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं आएगा जहां पे आपकी सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम हो और वो बजट में भी लाई करे। आप बोलोगे ना कि IC3 पे भी तो और सेटिस्फैक्शन होगी, IC3 तो हायर इंडिफरेंस का है ना, और ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, तो फिर मैं IC3 क्यों ना चूज कर लूं? यस और नो? डाउट आ सकता है? यस सर। क्या IC3 आपके बजट में है? नो सर। नो। Therefore, point of equilibrium होगा when the indifference curve is tangent to the budget line. बेटा प्लीज इस ग्राफ को कम से कम 4-5 बारी बनाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। पहले इंडिफरेंस कर्व बनाना, फिर बजट लाइन बनाना। ग्राफ परफेक्ट होगा तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे, बट एक्सप्लेनेशन भी ऑब्वियसली लॉजिकल होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, 3 इंडिफरेंस कर्व्स बनाए, ठीक है ना, IC1, IC2, IC3, और एक स्ट्रेट लाइन बजट लाइन बनाई। अब पॉइंट ई, अब वो आप अपने हिसाब से ABCD कर देना, बट ये ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम को पॉइंट ई रखना। एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इनिशियली जैसे आपको पता है ना, इनिशियली क्या होता है कि इस पॉइंट पे अगर मैं ये भी ले लूं कि सी में क्या हो रहा है, वो भी तो मेरे बजट में है। इनिशियली क्या होता है? MRS काफी हाई होता है, यस और नो? मैंने आपको अभी बना के भी दिखाया था कि जब आपके कंजम्पशन लेवल्स कम है, जब आपके कंजम्पशन लेवल्स कम है गुड एक्स के, तो MRS हाई होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इनिशियली MRS इज ग्रेटर देन द प्राइस रेशियो। क्या करोगे आप? यू विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स, एक्स की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? टिल द पॉइंट MRS becomes equal to the price ratio. अब अगर आप नीचे हो तो जब आपका x का कंजम्पशन लेवल बहुत कम है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, अगर x का कंजम्पशन इस पॉइंट पे हो, पॉइंट C पे, तो x बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो और y बहुत कम है, तो आपका MRS यहाँ पे हाई होगा या लो होगा? लो होगा सर। काफी लो होगा। यू विल रिड्यूस योर कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, उल्टा जाओगे आप। तो क्या होगा? ध्यान से देखना, अगर आप इधर हो, MRS is less than the price ratio, so you will reduce your consumption. तो ये मूवमेंट तब तक चलती है till the point we attain equilibrium. Explanation of the graph: IC1, IC2 and IC3 are 3 indifference curves. AB is the budget line. तो ये AB हो गई बजट लाइन, ठीक है। मैंने उसको CDE ले लिया, आप EFG ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता।
with the constraint of the budget line. Constraint, budget constraint क्या कहता है? You cannot spend more than your income. With the constraint of the budget line, the highest indifference curve which a consumer can reach is IC2. कह रहा है बजट के हिसाब से IC1 तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो, उसके काफी सारे पॉइंट्स, IC2 भी एक आध पॉइंट है, IC3 में तो कोई पॉइंट ही नहीं है ऐसा, ठीक है जी. The budget line is tangent, ये कीवर्ड है, the budget line is tangent to the indifference curve IC2 at point E. This is the point of consumer's equilibrium where the consumer purchases OM. तो ये O हो गया, तो जहाँ equilibrium है वहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखना, आप प्लीज उसमें वहां तिरंगा मत बना देना, सिंपल रखना ग्राफ को, तभी एक्सप्लेन कर पाओगे. आई एम नॉट अगेंस्ट पेट्रियोटिज्म, बट अंडरस्टैंडेबिलिटी पर्पस है ना, एक्सप्लेनेशन. ध्यान से देखना. तो ये इस पॉइंट की बता रहा है वो कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, ये O है तो ये इसको OM बोल रहा है. तो समझ आना चाहिए ना पॉइंट्स कैसे, वरना खो जाओगे आप. तो at the point of equilibrium consumer purchases OM quantity of good X and ON quantity of good Y. All other points on the budget line to the left or right of E, अभी जो इसके to the point of left to the right, तो इक्विलिब्रियम के लेफ्ट पे जो भी आपके बजट में है, राइट पे जो भी बजट में है, बजट में तो है वो लोअर satisfaction देंगे because they lie on a lower indifference curve. They will lie on lower indifference curves and thus indicate lower level of satisfaction. As budget line can be tangent to one and only one indifference curve, the consumer maximizes his satisfaction at point E when both the conditions of consumer's equilibrium are satisfied. तो सारी कहानियां हमने पढ़ी, सब कुछ हमने सुना, क्लोज कर लेते हैं इसको भी. MRS equal to the ratio of prices at the point of tangency, point E. The absolute value of the slope of the indifference curve and that of the budget line are same. MRS greater than price ratio. Equilibrium cannot be established at any other point. When MRS is greater than the price ratio, all the points to the left of point E, to the left, तो इसमें क्या होगा, your willingness to sacrifice will be high than what the market wants you to sacrifice. Points to the right of point E, your willingness to sacrifice will be less than what the market wants you to sacrifice. You will be in a state of rest. You will attain equilibrium only and only when MRS is equal to the price ratio. एक बार और ग्राफ बनते हुए देखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ परफेक्ट बनाना. ध्यान से देखना. टेक 2. Consumers equilibrium using indifference curve analysis. प्लॉटिंग बड़े ध्यान से. गुड 1, गुड 2. आप गुड A गुड B भी लिख सकते हैं, गुड X गुड Y भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा. ओके, कलर्स ठीक है. तो मुझे चाहिए 3 इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है, ध्यान से देखना. पेशेंस. पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, बहुत काम आती है इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ बना. जितनी दूर बनाओगे उतना नीट बनेगा, बट ये इंश्योर करना कि पैरेलल हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है.
पैरेलल होना, मतलब एक्सप्लेन पॉइंट तो आप तभी बता पाओगे ना जब वो पैरेलल होगा। ओके ठीक है, दूर दूर बनाना, आपके लिए पेंसिल से बनाना रिलेटिवली इजी होगा। ओके, कंपास यूज कर सकते हो, डी यूज कर सकते हो, ध्यान से देखना। नाउ द बजट लाइन। जब बजट लाइन बनाएंगे तो हाँ परफेक्ट, ये इंश्योर करना कि वो IC1 को भी इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा हो और IC2 को भी इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा हो। ये 3 पॉइंट्स जरूर हाईलाइट करना, क्योंकि इन तीनों पॉइंट पे जो बजट लाइन है, मतलब बजट लाइन पे लाई करते हैं, तो मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। बट मेरे को अगर ऑप्शन मिले IC1, IC2 और IC3 में, IC3 तो मेरी इनकम के बाहर है, तो IC3 मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। IC1 और 2 में अगर मेरे को ऑप्शन है कि मैं, अगर इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंट A, इसको ले लेता हूँ पॉइंट B, इसको ले लेता हूँ C, इसको ले लेता हूँ D, मेरे पास C, D, E का ऑप्शन है, तो तीनों में मेरी सेम इनकम स्पेंड हो रही है, तो आई विल चूज E बिकॉज इट इज गिविंग मी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली होता है MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। आगे जाके क्या होता है, MRS इज लेस देन PX अपॉन PY। पहले ग्रेटर था फिर लेस था, कह रहे नो, इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड व्हेन MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, इस पूरे रीजन में MRS इज ग्रेटर देन PX PY, इस पूरे रीजन में MRS इज लेस देन PX अपॉन PY, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एक ही होगा। तो मुझे यहाँ शेड करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्की सी शेडिंग करोगे, ये पूरा MRS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, यहाँ पूरा MRS इज लेस देन प्राइस रेशियो, तो इक्वल यहाँ पे है, तो कोई भी आप पॉइंट चूज कर सकते हैं, टू द लेफ्ट टू द राइट, वो आपके बजट में तो आएगा ही, बट आपको सेटिस्फैक्शन उतनी नहीं देगा जितनी पॉइंट E देगा। पॉइंट C लोअर लेवल पे है, IC के लोअर IC कर्व पे है, पॉइंट D लोअर IC पे है, पॉइंट E इक्विलिब्रियम पे है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी के साथ खत्म हुआ चैप्टर, खत्म हुआ कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। बेटा ये इक्वेशन ध्यान रखना, MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो बस इतनी याद होना चाहिए कि प्राइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, PX अपॉन PY, MRS XY क्या होता है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, बस इतनी सी बातें पता होनी चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, कुछ अलग नहीं आ जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे।